Okay, or you can go to slideshow tab, and then you will see top left corner, it says from beginning and from current slide. If you click on from beginning, the slideshow will start from the first slide. If you click on the from the current slide, it will start from the current slide. Okay. So this is the difference. So suppose if I click on from beginning, it will take me to the first slide, and then I can, by mouse or by your keyboard may you have to use the arrow button, down arrow, for moving further. If you want to go back, it has to be up arrow. So अगर आप देखोगे आउटपुट कैसे आ रहा है, ये एनिमेशन इफेक्ट है. अगेन सी आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा. So this is animation. In case you want to add, this is the way you add animation. Any question, doubt so far? This is not too much aggressive that we use. We try and keep it very, very formal presentation. So focus is not on bringing too much of creativity. And of course, to be very realistic, how do we do in a very corporate environment? Generally, we from a financial analysis perspective, hello. 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 Yes. Okay, so in most of the companies, especially the big research houses, we prepare the presentation, and there is a formatting team. So we generally hand over the presentation to. So there's no formatting team as such. There are 2, 3 very junior interns who generally being taken for formatting. So generally they turn around the formatting. We don't waste time on these formatting pieces. Okay, because एक research analyst का man hours बहुत ज़्यादा expensive होता है. So you don't want to waste that expensive man hours for these unproductive or PNL productive activities. That's the way most of the organizations operate. But again, but from your perspective, कि आपको या आपकी presentation बनानी है, we are doing this, and hence आपको मैंने animation बताया. So इसमें animation में so this animation, if you click on this animation pane, if you click on this animation pane,
it will, suppose that we add one more animation. So if you see on towards the right side now, this animation page starts giving you summary of the animation. आपने क्या ऐड किया है, आप इसको ऊपर नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। सपोज आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इसमें टाइमर ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, एंड suppose depending upon your MS Office, suppose if you find any animation which is available on Google but not available on your laptop, again you can add through this. But zero but this has lot of versions of the animations. So again, that's not something which is required. So these animations will come on the on a click of your mouse. In case you want this to be automated, then you can select with previous or after previous. Okay, you can set up the duration as well, how much after how much seconds or how much time you want that animation effect to come in. Okay, so आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं towards the left top corner, but उसकी जगह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। Sorry, you can see the preview from this also. Play selected. For example, if I click on this, so सपोज अब मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग को मैंने प्ले किया, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो आउटपुट सेकंड पे था, मैं फर्स्ट पे ले गया, अब प्रोसेसिंग को मैं फर्स्ट पे ले गया। So this animation pane helps you to rearrange, helps you to add some additional tools through which you can manage your all the animation that you've added to your PowerPoint presentation. Similarly, for example, जैसे ये ग्राफ है तो इसको So this is what animation effect is all about. कोई specific question है तो पूछ सकते हैं। Any question? I have a question on this paragraph slide, in how to add the context with alongside the graphs or charts, So like on this slide number. Like on this slide that you have added the pie chart, and there is an output processing input. The text. तो क्वेश्चन क्या था? तो इसमें कौन सा लेआउट यूज करना है हमें स्लाइड का? ये जो कोई भी आप लेआउट यूज कर सकते हो। सो लेआउट तो ये टेक्स्ट के लिए होता है। So for example, if you see, मैंने जो लेआउट यूज किया हुआ है इस स्लाइड पे, which is slide number 3, I have used this
लेआउट, ओके। एंड जब आपको ग्राफ या कोई चार्ट ऐड करना है तो एक्सेल से कॉपी किया यहाँ पे, तो ये किसी भी लेआउट में ऐड हो जाएगा. You don't need a specific layout to add this chart or add this pie chart. पाई चार्ट ऐड हो गया वो तो, बट ये इसमें टेक्स्ट फिर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट मुझे राइट नहीं हो पा रहा है. ये टेक्स्ट तो पहले से लिखा हुआ होगा ना आपका, ये तो हमने पहले लिखा था ना. अच्छा, एक मिनट, लेट मी ट्राई. ठीक है, क्योंकि उसके ऐड करने के बाद व्हेन आई वाज ट्राइंग टू चेंज द टेक्स्ट तो वो नहीं हो रहा था. अगर वो कभी नहीं हो, जैसे जो किसी रीजन की वजह से, so insert text box. Text box is a box that you can insert for adding text at any place in case you're not able to add text. This one, text box. Yes. Yeah, Parul, is that clear? You can all. Is the text box clear, Parul? Yes. In fact, so अच्छा, वन suppose. मोर थिंग. हाँ, बोलिए. नो, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन. अगर हमें पूरी शीट पे शीट को डिवाइड करना है, लाइक अगर वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम्म. तो उस केस में कौन सा फॉर्मेट यूज, मतलब कैसे यूज करेंगे? कोई 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 वो नहीं है पारुल कि ये फॉर्मेट यूज करना है, ये नहीं करना है. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, वन सिंपल वे टू डू अ SWOT एनालिसिस वुड बी, ओके, आपने SWOT हेडिंग डाला, आपने कहा आई विल स्टार्ट विद स्ट्रेंथ्स, एंड देन स्ट्रेंथ्स के अंदर आपने सब पॉइंट लिखने शुरू कर दिए. ठीक है.
आपके जब पॉइंट खत्म हो जाए आप वीकनेस से स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज वन वे टू डू दिस. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो. आपको टेबल बनाना चाहते हो टेबल बना सकते हो. आप ऐसे भी कर सकते हो, स्लाइड बाय स्लाइड बना दो कि शॉर्ट एंड आप उसका स्ट्रेंथ समझा रहे हो और उसके सारे पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप उसकी वीकनेसेस कर रहे हो. नेक्स्ट स्लाइड आपकी सपोज ये वीकनेस की हो जाएगी. ऐसे आप कर सकते हो. सो जस्ट keep that in mind. This is not an accounting IFRS or accounting standard that you will have a P&L format, balance sheet format. ऐसा कुछ नहीं. कंटेंट आपको बता दिया, अब आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं कंफर्टेबल लगता है प्रेजेंट करने के लिए, आपको क्या लगता है आपके ऑडियंस को क्या इजी होगा समझने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या इजी होगा, उस फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दीजिए. सपोज अगर आपको लगता है कि आपको एक एक मैट्रिक्स बना के करना है, सपोज आपको 4 पॉइंट टेबल बना के करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. सो कल मैंने आपको बताया था इंसर्ट स्मार्ट आर्ट. यहाँ पे आप देख लीजिए आपको कोई कोई अ, कोई अगर आपको if you believe suppose this, आप ऐसे यूज करना चाहो ऐसे भी यूज कर सकते हो शॉर्ट एनालिसिस के लिए. तो ये 4 बॉक्सेस हैं, आपको 4 ही चाहिए थे. आप ऐसे भी कर सकते हो. एक स्ट्रेंथ का कॉलम हो गया, एक स्ट्रेंथ का बॉक्स हो गया, एक वीकनेस का बॉक्स हो गया, एक ओ का हो गया और एक टी का हो गया. then you can write your points in this also. ऐसे भी कर सकते हो. कोई लिमिट नहीं है पारुल. I can show you any number of ways that you can present. It's just वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन correct. करके आ जाएगा. Correct. And that's what I'm trying to tell you. Don't try and waste too much of a time on experimenting the formatting part. उतना टाइम को अपने कंटेंट पे लगाओ. फॉर एग्जाम्पल आपको शॉर्ट बनाने में आपने 10 मिनट लगाए, शॉर्ट का जो डेटा है उसके पॉइंट्स बनाने में आपने 10 मिनट लगाया और 2 घंटे फॉर्मेटिंग में लगा दिया. इट्स ऑफ नो यूज. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मच. क्योंकि आप कोई फॉर्मेटर जॉब के लिए हायर नहीं करने वाले आपको कोई. तो आपकी फॉर्मेटिंग स्किल्स को मैं इवैल्यूएशन नहीं करने वाला. आप जो लिखोगे या जो बोलोगे, जो पॉइंट लेके आओगे, ये स्ट्रेंथ है, क्यों वीकनेस नहीं है, वो जो पॉइंट है मैं उस पे ज्यादा आपको वैल्यू ज्यादा वेटेज दूंगा. ठीक है. Yes, I understand. We just but some for the like BCG matrix and for that थोड़ा सा आइडिया करेक्ट लगना करेक्ट. चाहिए. एग्री. तो जैसे बीसीजी मैट्रिक्स है, तो बीसीजी मैट्रिक्स भी अगेन आप डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो. सो सपोज आप अगेन यहीं से कुछ पिक कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. यहाँ से आप कुछ पिक करना चाहो यहाँ से पिक कर सकते हो. ठीक है. या सपोज अगर आप 4 सेक्शंस क्रिएट करके करना चाहते हो तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा. So you can take this also BCG में. आप ये भी पिक कर सकते हैं. ये आपके स्लाइड्स पे है अगर आपको याद हो, जो पढ़ाने वाली स्लाइड्स थी उसमें ऐसा कुछ है. आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो. आप ऐसा कर सकते हो बीच में आप बीसीजी लिख सकते हो और 4 कॉलम्स आपको चाहिए कैश का और स्टार. So again, as you said, it's a experimentation more than that.
आप कितना टाइम फॉर्मेटिंग में डालना चाहते हो, उतना एक्सपेरिमेंट करोगे, उतने n नंबर ऑफ वेज आपको निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा। इसमें आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने, कि जो आपकी कॉम्बिनेशन है, जो आपकी प्रेफरेंसेस हो। आपको ब्लैंक चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जो भी है। सो probably I can take sessions for hours for the formatting, because हम तो initial phase में बहुत हाई एंड फॉर्मेटिंग करते थे, बट अगेन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आप फॉर्मेटिंग करना बंद कर देते हो, because the people who join at any turn who do the formatting you try and focus more on the analysis part. बट कोशिश करो फोकस एनालिसिस पे करने के लिए आप लोग, एटलीस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, हैविंग सेड दिस, कोई और आपने भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई और टूल या कुछ कुछ ट्राई किया हो जो आपको स्ट्रगल आ रहा हो, सो मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन और हेल्प इन दैट पार्ट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कुछ पूछना है तो। हाँ जी, कोई डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? You can convert this into PDF also once you prepare your presentation. तो बहुत सिमिलर तरीका है, जैसे आप किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करते हैं, प्रोवाइड आपके लैपटॉप में या आपकी मशीन में वो PDF कन्वर्टर होना चाहिए। सो आप इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली वंस यू डन विद द प्रेजेंटेशन, अगेन to just make it more formal, we at least convert into a PDF. हाँ जी, कुछ पूछना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए? कोई कोई टेक्निक, कोई टूल जो आप लोग को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जरूरत हो, या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नो? ठीक है, सो when हेलो हेलो go ahead. सर सर ये हम स्ट्रेंथ में जो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम को हम ले सकते हैं क्या? हम
Sorry, could you repeat your point? मैं ये कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स के स्ट्रेंथ में हम ट्रैकिंग सिस्टम को ले सकते हैं। कौन सा सिस्टम? ट्रैकिंग सिस्टम, टाटा फ्लीट क्या मैन होता है? प्रोग्राम। क्या होता है ट्रैकिंग सिस्टम? ट्रैकिंग सिस्टम जिसके थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है जिसके थ्रू फजलू? एवरी कार का मूवमेंट का पता करना, कार एंड उसके व्हीकल्स का मूवमेंट का पता करना। मुझे अभी तक नहीं समझ आया ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आप मुझे समझा सकते हो अच्छे से तो मैं बता सकता हूँ। अगर आपको पता हो तो भी ना। ट्रैकिंग सिस्टम हाँ, पता हो तो क्या भी सर? ट्रैकिंग सिस्टम पता है क्या होता है? यस सर। बताओ। हाँ, व्हीकल के मूवमेंट को तो पता करना कि किस समय व्हीकल क्या कर रहा है, कहाँ पर रुका हुआ है, हर हर एक मोमेंट का पता करना वो तो जीपीएस करता है, ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ से आ गया? है। टाटा फ्लीट में तो नाम दे रखा है ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से। वो मेरा लुकआउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप रिसर्च कर रहे हो ना इस पे, आपने कहा ट्रैकिंग सिस्टम, मैंने कहा ट्रैकिंग सिस्टम और जीपीएस में क्या डिफरेंस होता है? तो जीपीएस होता है जो आपने मुझे बताया कि पोजीशन पता लगा लेना। Now this is not finance. This is technology about your company, not my company. You should know what is this technology. इसलिए मैंने पूछा, पता हो तो ट्राई करना। क्या होता है जीपीएस? इसको जीपीएस बोलते हैं कि ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं जो आप मुझे बता रहे जीपीएस सर। हो? अभी तो आप ट्रैकिंग सिस्टम बोल रहे हो। हम्म। और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्ड तो नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, करेक्ट? ये आपकी कंपनी का आपके हिसाब से एक टेक्नोलॉजी है जो अभी तक हमें यही नहीं पता वो है क्या, और हम स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है उसमें पहुंच गए हैं। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ये पॉइंट है क्या, ये टेक्नोलॉजी है क्या, हम लोग कैसे असेसमेंट करेंगे फजलू? इसलिए आपको स्ट्रगल हो रहा है कि वो स्ट्रेंथ है कि वीकनेस। जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा टेक्नोलॉजी क्या है तो आपको कैसे पता लगेगा? पहले पढ़ो क्या होता है ट्रैकिंग सिस्टम। जहाँ पे भी आपने पढ़ा है वो ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, टाटा मोटर्स कैसे यूज कर रहा है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है टाटा मोटर्स के सेंस में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा ये कहाँ फिट होगा। ठीक है, मैं बता सकता हूँ ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, बट आई थिंक फिर से अनफेयर हो जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ो। ट्रैकिंग सिस्टम आपकी पोजीशन को नहीं ट्रैक करता, आपकी गाड़ी कहाँ है ये ट्रैक नहीं करता। ट्रैकिंग सिस्टम ये ट्रैक करता है कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी का डोर ओपन है, गाड़ी में एयर कंडीशन ऑन है, तो वो ट्रैक कर लेगा कि कितनी देर एयर कंडीशन चला, कितनी देर गाड़ी का कौन सा गेट खुला रहा, लेफ्ट गेट खुला कितनी बार, 4 बार खुला, 5 बार खुला, ऑल दीज movements of this car, what's happening inside the car, what's happening with the engine, what's happening with the different setups in the car, उसको ट्रैक करता है ट्रैकिंग सिस्टम। जीपीएस कार की पोजीशन या कार की मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, पढ़िए थोड़ा सा। हाँ जी, और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन? Regarding the presentation,
जो हम कंपनी चूज कर रहे हैं हमें थोड़ा उसका हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करना चाहिए, या मुझे जरूरत नहीं है, आपके लिए अ, इम्पोर्टेंट है वो समझने के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम मींस आई एज एन इन्वेस्टर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको देखो पारुल, आप अपने आप से पूछो, अगर आप इन्वेस्टर हो और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो आप क्या देखना चाहोगे उस प्रेजेंटेशन के अंदर, वो पैरामीटर लगाओ और हर चीज को डिसाइड करो कि डालने की जरूरत है कि नहीं। इसको थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन मत बनाओ। मैं आप सबको बार बार एक एक गोल्डन रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो कोई नहीं होगा सब बताने के लिए क्या डालना है क्या नहीं डालना है पारुल। The rule that वही आई we वांटेड ask, टू the अंडरस्टैंड rule that बिकॉज we that rule, if I'm reading a research on a particular company or a pitch book, the rule that I try and follow कि मेरा कौन सा इन्वेस्टर और वो इन्वेस्टर क्या, उस इन्वेस्टर को क्या इन्फॉर्मेशन दूं कि उसको लगे हाँ ये एक एनालिसिस है। अगर वो इतना रॉ इन ऑडियंस है, यार उसको हिस्ट्री बताना है तो बताओ उसको। अगर आपको लगता नहीं ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा, देन आल्सो डिपेंड्स आपकी कंपनी क्या है। लेट्स अज्यूम आपकी कंपनी टाटा मोटर्स है, ये मारुति है, और आप एक इंडियन इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन है, सबको पता टाटा मोटर्स और मारुति क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, तो मैं शायद स्किप कर दूंगा। और अगर रखना है तो प्रॉब्लम छोटे पोर्शन में रखूंगा, और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मेरा बाकी स्लाइड्स जो टाइमिंग है उस पर्सपेक्टिव से कैसे फ्लो जा रहा है। इज दैट हिस्ट्री टू इम्पोर्टेंट for a decent investor? I would say no. अगर रखनी भी, I would not spend more than 2 lines or 3 lines, or probably more than a minute on this. Please understand, आप बहुत सारे constraints में खेलोगे। So one constraint is a time. आपको 20 minutes के आसपास का टाइम है आपके पास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत कैन नॉट स्ट्रेच फॉर 10 minutes। करेक्ट, थोड़ा बहुत मीन्स 2 to 3 और 2 to 5 minutes मैक्सिमम। वो भी अगर आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, कुछ एक्सेल में आपको दिखाना है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू, बट नॉनसेंस के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला। ठीक है, तो अगर आपके पास बाकी स्लाइड्स बाकी कंटेंट में पारुल आपको टाइम शॉर्ट पड़ रहा है, तो आई विल से डोंट वेस्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री। बट लेट्स से बाकी सब आपका कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया और आपके फिर भी टाइम बच रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट फॉर हिस्ट्री। इंपॉर्टेंस असेस करना शुरू करो कि कैसे मैं डिसाइड करूं what is more important. Ask yourself, is this something which will impact the investor's decision? If the answer comes out to be no, उसको less priority out कर दो। If you get some answer like yes, this will impact or this may impact, तो उसको इन स्कोप करो और उसकी प्रायोरिटी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश करो। Is that clear, Parul? या और देखो ये थोड़ा स्टार्टिंग है, जब आप बना लोगे ना, आप बना के मुझे दिखा भी सकते हो प्रोवाइड आप लोग का बन जाए टाइम से पहले। जिस तरीके से चल रहा है मुझे तो लग रहा है आप लोग लास्ट डे बनाओ के लाओगे। बट लेट्स से इफ यू आर एबल टू पुल दिस ऑफ before your date of the presentation, you can show it to me. I can give you that guidance. I can help you कि ये चीज पारुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है या ये चीज कहाँ पर है, एंड देन आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको एक बना के स्ट्रक्चर मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना, कुछ एटलीस्ट पॉइंटर्स तो कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, कि सर मैं ये 10 पॉइंट डाल दूं तो मैं बोल सकता हूँ उस 10 में से ये 1 पॉइंट छोड़ सकते हो, बाकी 9 पे फोकस कर सकते हो। इट्स अ रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट? यस Another example, I will try and cover history in the business model slide only. मैं अलग से हिस्ट्री के स्लाइड नहीं डालूंगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कि कंपनी क्या क्या बिजनेस है, पास्ट में क्या करती आ रही है, वो हिस्ट्री है ना एक तरीके से। अब जो चीज हिस्ट्री में आप बिजनेस मॉडल नहीं, कंपनी किस दिन आई, किसने किसने प्रमोट करी, उसका उसको क्या कब वो लिस्ट हुई, वो सब इंफॉर्मेशन का शायद इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो शायद मैं उसको स्किप भी कर दूं। कौन से ईयर में आई, किसने बनाया, क्या नाम, कौन से ऑफिस में थी, वो सब शायद एक इन्वेस्टर के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन हो जाती है ज्यादा। इन्वेस्टर को क्या इंटरेस्ट है, वो बिजनेस क्या है कंपनी का, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसकी इकोनॉमी कैसे ड्राइव करती है, इंडस्ट्री क्या इम्पैक्ट है, उसके शॉर्ट क्या है, उस पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक इन्वेस्टर, जो डिसेंट इन्वेस्टर हो।
But let's assume हिस्ट्री में कुछ ऐसा यूनिक है. So let's assume एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लास्ट 3 साल में 10% के ROI पे जनरेट कर रहा है, या लेट्स assume उसका जो डिविडेंड रेट है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई गया है लास्ट 3 साल में. तो ये हिस्ट्री है, यस हिस्ट्री है, बट ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो एक इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है. तो शायद हाँ, तब मैं उसको ले आऊं. पर आपको समझ आ रहा है हिस्ट्री बहुत एक वाइड नो आई एम कॉन्टेक्स्ट. उस हिस्ट्री में क्या पॉइंट है दैट विल हेल्प यू टू काफी चीजें डिसाइड कि कंसिडर. यस यस. सो अगर हिस्ट्री में आप पूछोगे 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी? द आंसर इज नो. बट अगर आप पूछोगे लास्ट 3 साल का डिविडेंड रेट है कंपनी का ये है, पे आउट रेट, इज दैट इंपॉर्टेंट? प्रॉब्ली द आंसर इज यस. अगर बोलोगे लास्ट 3 साल का कंपनी का ROE, अब वो ROE को हिस्ट्री में डालने की जगह रेशियो में ट्रेंड में डाल ही रहे हो ना आप ROE, वो भी तो हिस्ट्री है. हम्म. आप लोग बनाना शुरू करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट मिलना शुरू हो जाएगा. हाँ जी. और डाउट, क्वेरी? एक्चुअली वो एक कंपनी जो मैंने सिलेक्ट करा था उसमें थोड़ा उसका कंटेंट काफी ऐसे कहते हैं ना, नॉट फॉर द लेमैन, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक. तो फार्मा इंडस्ट्री से था, तो उस कंसिडर में आई वाज थिंकिंग कि इट विल वेस्ट इफ एस वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मिनट्स. तो एक्सप्लेनेशन में उसी में काफी टाइम निकल सकता है. ठीक है, तो उसके लिए आप एक बिजनेस मॉडल से पहले एक स्लाइड डाल लो जिसमें आपको वो सब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझा दो. वो पिक एंड चूज आप कर सकते हो. हाँ जी. एनीथिंग एल्स? लास्ट इंटरेक्शन होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है. तो प्लीज इंश्योर कि जो भी आपके प्रेजेंटेशन रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली अबाउट पावर पॉइंट. जैसे कल आई थिंक दीपक के फजलूर ने पूछा था that how you deliver the presentation part. मैं उसका एक सेक्शन कवर करूंगा अभी. तो आप उसके रिलेटेड भी डाउट्स पूछ सकते हैं. बट बिफोर आई गो टू डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि पावर पॉइंट स्ट्रक्चर में किसी को कुछ डाउट है बिफोर आई गो टू दैट पार्ट. नो? लास्ट टाइम any doubt, query on the structure of the PowerPoint, any tool and technique before I go to the next part in terms of delivery?
Okay, so in case no, now let's come to the, so we've done the first part, which is creation of the presentation. And the second part of the second agenda of this session is in terms of delivery of the presentation, because you first create and then you deliver the presentation. And in order to ensure it's an effective presentation, you need to take care of both the parts. So delivery में मैंने कल आपको जो 4 rules मैं follow करता हूँ वो मैंने आपको share कर दिए थे, ठीक है? I won't repeat that. So those who are not there, कल वो देख लेना. Over and above that, so when we start delivering the presentation, so first thing that you need to keep that in mind is an individual presentation or as a team presentation. For you, it would be an individual presentation as far as this evaluation is concerned. But generally, sometimes when we go and present this pitch book to the clients or to investors, so generally it's a team presentation where 1 and 2 people jointly make the presentation. So if that's the case, then you need to understand what's the flow, who will speak on what part, how do you hand over the part, transition कैसे होगा. So which means आपने first 5 slides बोली, then your colleague or team member needs to cover next 5 slides. So how do you hand over him the slide or her those slides? ठीक है, वो एक होना चाहिए. Introduction कौन करेगा, closing कौन करेगा, ठीक है. So थोड़ा सा उस पर भी एक strategize part होना, एक strategy होनी चाहिए आपके पास before you can do that. Then towards the end, if there will be any Q&A from the audience, or in case any questions have been raised by audience or so suppose client, or in this case suppose somebody who is assessing you, then who will handle those questions? Because अगर team में 3 लोग हैं, so there has to be a clear definition that who will handle what questions. So parameters defined होना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा, दोनों तीनों ने रिएक्ट कर दिया और दोनों तीनों के आंसर्स अलग अलग हो गए, तो बहुत डिफिकल्ट है. देन यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर योर टीम as a whole, because now you're given 3 versions of an answers, which means you're telling that you are not in sync, you all 3 are not in sync. Okay, so there should be a clear communication, clear planning before you start the presentation, that okay, on what parameter who will lead the questions in case asked. And then you also need to understand there generally is a generally I generally personally follow this technique, YouTube available, which is a undefined leader concept in a team presentation. So what does that mean? So if anything goes out of control, any question which nobody knows, anything that happens that requires a spontaneous sub decision making, then who will take that decision? And you, among 3 or 4 people, it's been pretty much defined that okay, you would have that additional responsibility of doing those decisions or making those decisions on the spot, and the others will follow. So that's again the protocol that we define. Again, it's a very, very high formal presentation that you try and give. So अभी I don't think आपको इतना जरूरत पड़ेगा, तो इतना important नहीं है part, ठीक है. Voice modulation is very important. So what do you mean voice modulation? Your pitch of the voice should not be constant. It's because if you continue to speak at the same pitch, then generally it becomes a little boring, especially if it's a long presentation, like 20 minutes, 40 minutes presentation. So you need to change your pitch depending on the importance of the content. You need to add examples wherever possible. If there are graphs, there are charts, you need to explain the implication or the impact of those graphs and charts rather than reading the numbers. Okay, so I don't appreciate, nobody should appreciate अगर आप एक for example एक ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट में आप आके पढ़ रहे A का 120 है
बी क्या है, B10 है, C30 है और D90 है। इसमें आपने क्या एनालिसिस बताया? ये तो यहाँ पे चार्ट में लिखा हुआ ही है ना, ये तो मैं भी देख सकता हूँ ऑडियंस। मतलब बताओ, इसका इम्प्लीकेशन बताओ, ठीक है? सो प्लीज, there's a difference between presenter and news anchor. You are not delivering this in a capacity of a news anchor. News anchor only reads, do not analyze, do not explain. He or she only reads the script. आपको रीड नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप आके स्लाइड को सिर्फ रीड कर रहे हो तो आपकी जरूरत नहीं है, वो मैं खुद भी रीड कर सकता हूँ। आप मुझे भेज दो, मैं रीड कर लूंगा। सो प्लीज रिमेंबर, आपको एक्सप्लेन करना है। सो हेंस इन योर प्रेजेंटेशन इट शुड बी अ बुलेट पॉइंट्स एंड देन यू शुड एक्सप्लेन दैट बुलेट पॉइंट। यू शुड नॉट रीड दैट बुलेट पॉइंट। जो लिखा हुआ है उसको बोलने की जरूरत ज्यादा नहीं है, उससे पिक करो और एक्स्ट्रा पार्ट बताओ जो उसमें नहीं लिखा है। विच मीन्स ऐसा होना चाहिए, वो प्रेजेंटेशन अगर आप किसी को भेजो और वो प्रेजेंटेशन उसको देखे और फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन को सुने, अटेंड करे, तो देयर शुड बी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देन उस प्रेजेंटर की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अगर आपने ईमेल के थ्रू मुझे प्रेजेंटेशन भेजा, मैंने रीड कर लिया और आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप भी रीड ही कर रहे हो, तो आपने क्या वैल्यू है? आपकी जरूरत ही नहीं थी। Is that part clear? This is very important because a lot of students make this mistake. They come out and they read this presentation. They write too much of the content on the slides that they do not have anything to explain. That's also very important. When you're creating a bullet point in your presentation, be very careful. Only write a very limited point so that you have large content to speak. Now, which is again a problem because अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं है, अच्छे से उसको समझा नहीं है, तो आपको याद नहीं होगा। जैसे फजलूर लास्ट क्लास में बोल रहा था कि मैंने पढ़ा, मुझे कुछ याद ही नहीं है, ठीक है? सो वो क्वालिटी ऑफ रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला। उस केस में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा बहुत सारा, आपको पूरा पैरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा वो पैरा। फिर आप प्रेजेंटेशन में उसको रीड करना शुरू करते हो और आपकी इंपॉर्टेंस या आपकी कोई जरूरत नहीं है फिर प्रेजेंटेशन की। So these are the few additional rules over and above what I told you yesterday to ensure कि जो डिलीवरी होती है प्रेजेंटेशन की वो अच्छी। ऑफ कोर्स यू शुड बी इन अ फॉर्मल अटैक, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई फॉर्मल, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन, सो आपको कोई फॉर्मली ड्रेस होने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको पता ही है, दिस प्रेजेंटेशन शुड बी इन अ फॉर्मल अटैक। तो yeah, these are some of the key points which which is part of your second agenda in terms of deliver कैसे करते हैं। कुछ पूछना हो कोई, anything that any point that you need clarification, any point that you need to add that you believe is also important but are not covered into these, so more than happy, please feel free to add that as well। कुछ questions है तो बताइए। हेलो। Yeah. जैसे ये जो इनपुट जो होगा, इनपुट तो अदर कंपनीज का भी तो सेम, अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज का भी तो सेम ही होगा। हो भी सकता है।
होगा ही ऐसा मैं नहीं बोल सकता, वो डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की है। कुछ कंपनीज होते हैं उनके रॉ मटेरियल यूनिक होते हैं, किसी के पास नहीं होते। कुछ कंपनीज की रॉ मटेरियल या इनपुट्स कॉमन होते हैं, वो तो आपको असेस करना है। हाँ जी, और बोलिए। और और सर ये जो एनुअल रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ और JLR का इंफॉर्मेशन है, बट उसके कंपनी साइड में बिल्कुल है ही नहीं। तो सर इसका इंफॉर्मेशन लेना चाहिए या फिर नहीं? क्यों नहीं है वो कंपनी के डेटा में? देखा तो है ही नहीं इसमें। कंपनी के वेबसाइट पर तो नहीं, अदर सर्च करने पर मिल जाता है, क्यों बट नहीं है, वही तो कंपनी के वेबसाइट पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे हम दोनों में टाटा मोटर्स के एक्सपर्ट आप हो, मैं नहीं हूँ सर। वो आपका बेबी है, मेरा बेबी नहीं है। So when you come and start asking question, be prepared कि आप ही को आंसर करने हैं उनके। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, इट्स योर बेबी, यू आर अ पेरेंट, यू चोज दिस कंपनी, यू आर एनालिस्ट, आई एम नॉट एन एनालिस्ट फॉर दैट कंपनी। ठीक है, तो आप क्यों क्यों वो कंपनी का इंफॉर्मेशन, वो चीज का इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट में या कंपनी के डेटा में या एनुअल रिपोर्ट में नहीं है, बताओ। पता नहीं सर। ऐसे ही आंसर एक्सपेक्टेड था मुझे तुमसे। अब आप खुद सोचो फजलू, कितना स्केची वर्क कर रहे हो आप। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन में आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पे क्यों नहीं है, जबकि ये कंपनी की रेलेवेंट पार्ट है, विच इज अ वैलिड क्वेश्चन। और उसको हमने ड्रिल करने की कोशिश ही नहीं करी है। हमने उसको उसको उस क्वेश्चन को हमने अलग ट्रैक पे ले गए हैं, सर ये क्यों नहीं है, सॉरी नहीं, आप ये नहीं पूछ रहे, आप ये पूछ रहे हो उसको डालू कि नहीं डालू। और वो डालू कि नहीं डालू से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि यार ये टाटा मोटर्स का एक पार्ट है, ये उसकी वेबसाइट पे या उसकी उसकी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे कैप्चर क्यों नहीं करी गई, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। करेक्ट फजलूर, हमें पहले वो समझने की जरूरत है। करेक्ट, यस सर। वो जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन अपनी प्रेजेंटेशन में डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। अगर कंपनी ने नहीं डाली अपनी इंफॉर्मेशन ये, और वो आपको पता ही नहीं लग रहा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। ढूंढो ये क्यों, क्यों कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं डाल रखी वहां पे। फजूर, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने क्यों बोला था कि अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो अपने रिज्यूमे में डालने का डिसीजन आप ले सकते हो। आपको आई थिंक अब रियलाइज हो गया होगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी दोज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जो आपने पास में दिए होंगे, कॉपी पेस्ट करके गूगल से सर को चिपका देते थे या कॉलेज या स्कूल में दे देते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वो नहीं होने वाला है यहाँ। फजलू, यस सर, यस सर। यस सर फॉर व्हाट? समझ में नहीं आया क्या आ गया? कि ये कॉपी पेस्ट वाला प्रेजेंटेशन से नहीं है। हाँ, तो कॉपी पेस्ट वाले एटीट्यूड से बाहर आ जाओ। आप नहीं आ रहे मैं बिल हो, अभी वहीं नहीं तक। सर, मैं कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं चाहता। अरे करना नहीं चाहते हो तो आप कर ही नहीं पाओगे, मैं वो नहीं बोल रहा आपको। मैं बोल रहा हूँ जो थॉट प्रोसेस है वो कॉपी पेस्ट वाले, उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाओ, ये बोल रहा हूँ। आप थॉट कॉपी पेस्ट तो कोई कर ही नहीं पाएगा, आपको प्रोजेक्ट ही ऐसा दिया। ठीक है, सो उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कंसर्न मेरी ये है कि
आपका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, और आपकी गलती नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है, बिकॉज हिस्टोरिकली आप लोगों को जितने भी, इनफैक्ट एमबीएस में भी, करेक्ट, एक्सेप्ट फ्यू बी स्कूल्स, आई टेक सेशन इन ऑफ बी स्कूल्स, वहां पे भी मैंने यही देखा है, ठीक है, कुछ कुछ फैकल्टीज होती हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे देती हैं जो आसानी से कॉपी पेस्ट करके बन सकते हैं. So students get into that mindset कि हाँ copy paste करके बन सकती हैं. When they get something like this, जहाँ पे it's practically impossible to turn around with the copy paste method, वो struggle आना शुरू होता है, because हम 3 साल 2 साल MBA या graduation, so close to 5-6 years जो हमारा core education है, हम उस thought process से इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं कि हमारे को लगता है कि हर एक प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट उसी से बन सकता है. So, इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ, वो एक डिफरेंस है, ये उससे नहीं होने वाला है. इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा, तभी होगा. आप मुझे ये बता देना, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, कि कंपनी वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं डाली है. जैसे आपको ये पता लग जाएगा, आपको खुद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा कि कम आपको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए प्रेजेंटेशन. तो मुझे लगता है आपको खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो ये ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाएंगे. हाँ जी. और बोलिए, क्या डाउट है, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के ऊपर. तो प्रेजेंटेशन, नाउ व्हेन आई एम सेइंग डाउट इन प्रेजेंटेशन, बोथ, either in terms of creating or either in terms of delivery, we are now done with both the agendas. You can feel free to ask question from any of these parts, creation or delivery. हाँ जी. Parul, what is the status or progress on your presentation? I have started the jotting down of the raw data. Actually, now I have figured out that I would work on ITC only. So Okay. Change the company. just now I was thinking कि कोई it बात, would be too difficult. अभी दोबारा तो चेंज होगी. तो I sequence no. Presentation. I chose. अरे I was देख actually बात. working on sequence scientific. तो वो मेरा जनरल रिसर्च चल रहा था काफी टाइम से, बट दैट इज वेटरनरी फार्मा, तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो ठीक है, आईटीसी वुड. एक्सप्लेन तो करने में आईटीसी टाइम को लगता, एक्सप्लेन करने में टाइम नो लग रहा है नो कि आपको खुद को समझने में टाइम लग, आपको खुद को समझने में टाइम लग रहा हो. मुझे समझने में लगा टाइम काफी. हाँ. तो वो मैंने आज ही नहीं उठाया, बट इट इज बीन आई वर्किंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स. तो अभी भी उसमें कुछ ऐसे वोकैब उनकी ऐसी है, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो थोड़ा पर्टिकुलर टू दैट कंपनी. करेक्ट. यस. अगर आप उसमें तो कॉन्फिडेंट हो तो आप जा सकते हो उस प्रेजेंटेशन में, बट अगर आपको अभी भी क्लोज टू नो 1.5 एक्चुअली month पता है, है तो मेरा आई हैव एन इशू विद, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जहाँ 2-3 क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो आई स्टार्ट फंबलिंग, ये सब हो जाता है. तो कोई बात नहीं. अभी आपने देखा नहीं मैं प्रेजेंटेशन कैसे लेता हूँ, सो डोंट वरी. नहीं, आई रिमेम्बर द ओयो के टाइम पे जो क्वेश्चंस हो गए थे, तो मेरे को वो लगा कि इट वाज एन इनकम्प्लीट रिसर्च. तो आई डोंट वांट टू दैट थिंग टू हैपन दिस टाइम. ठीक है. See, the one suggestion from my side, कंपनी चेंज करना ना बहुत आसान है, और अभी दोबारा ऐसा आपको फीलिंग आएगा पारुल, जब आप आईटीसी में रिसर्च करना शुरू करोगे
आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे भी आप जाके अटक जाओगे, या उसी कुछ लिमिटेशन प्रॉब्लम है। हर कंपनी की रिसर्च में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अगर आप बार बार कंपनी चेंज करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज जितना इन्फॉर्मेशन आपने पुराने का रिसर्च किया होगा वो वेस्ट चला जाएगा। सो कोशिश करिए, अनलेस इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दैट यू कांट ओवरकम, ट्राई नॉट टू चेंज द कंपनी। बट आई हैव नो problem for you to change the company. It's just your time, your date of the presentation is fixed, और जितना चेंज करोगे उतना आपके पास टाइम कम होगा फॉर एन इंडिविजुअल कंपनी। सो जस्ट स्ट्रेटेजाइज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और गिवन आपने कंपनी चेंज करी है, तो अभी तो फिर आप बहुत अर्ली स्टेज पे ही होंगे, आई थिंक, करेक्ट? नो मतलब थोड़ा सा मेरा ज्यादा रिसर्च था सीक्वेंट पे, बट या आईटीसी वी आई हैव स्टार्टेड आल्सो, नॉट नाउ बट फ्रॉम 15 days फ्रॉम। तो वही है कि जैसा आप बोल रहे हो, तो आईटीसी का मेरा कंसिडरेशन ये था कि थोड़ा जनरल कंपनी एफएमसीजी, तो उसमें मटेरियल ज्यादा है। और रिगार्डिंग सीक्वेंट है तो उसकी रिसर्च थोड़ा मतलब उसकी रिसर्च कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू आईटीसी। ठीक है, ठीक है। इफ यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन आईटीसी, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक चैलेंज अभी कुछ पूछना है तो बताइए। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डू वी हैव टू ऐड एनी डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स? यस, यस। तो हमारी लीगल टीम बनाती है वो सब डिस्क्लेमर, बट आप छोड़ दो डिस्क्लेमर वगैरह। डोंट वरी, मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला आपके एनालिसिस पे तो आपको डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं। But yes, valid question. In the real world, because the clients will be acting, putting money basis that report that we submit, or the presentation or pitch book that we submit. So there's always a legal risk that you run. The legal risk is, suppose if you say buy this company, the stock price is expected to go up, or buy this company, it's a good company to pick because of ABC reason, and if some reason that doesn't happen, the client might always come back to you and say तुमने मेरा पैसा डुबवा दिया. So yes, to cover that legal risk, there's a disclaimer that's been created by the legal team. वो हर एक पिच बुक में या रिसर्च रिपोर्ट में लास्ट में ऐड किया जाता है। तो आप कोई भी सैंपल गूगल पे, आपके एलएमएस पे भी हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे सैंपल्स, अगर आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो देख लेना। तो उसमें आप देखोगे तो जनरली टुवर्ड्स द एंड आपको डिस्क्लेमर्स मिलेंगे। बट अभी फॉर योर प्रेजेंटेशन आपको कोई डिस्क्लेमर वगैरह कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट समथिंग दैट्स योर फोर्टे, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। Just on a lighter note, you're told that you are not going to invest on the analyst. You have prepared all of these students. नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा बोला कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस पे आपको कोई डिस्क्लेमर डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लीगल रिस्क रन नहीं करना। आई विल नॉट कम बैक टू यू एंड से कि तुमने मेरा पैसा डुबवा दिया। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा अभी, तो आई विल नॉट कम बैक टू यू एंड से कि तुम्हारे एनालिसिस की वजह से मेरा लॉस हो गया। बट नो, on a again continuing the same lighter note, honestly, again I don't know how much trust that you have on me, okay, but there have been students in the past who have pulled this pretty well, who जिनकी रिसर्च मैंने उनसे कहा आप मुझे मेल कर दो, give it to me, I want to leverage on this. Some of these people have started working with us. Some of the people के रिसर्च इतने अच्छे हैं कि हमने आगे फॉरवर्ड भी कराए थे. Some of these students were able to use that research in their placement process. ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया, अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। तो जब आपका प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ पे हिमाटिकस में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? सो लेट्स अज्यूम आप इसी बैच में देखें, लेट्स अज्यूम इस बैच में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? सो 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर लेते हैं, उनको इतना खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं इस रिसर्च को या इस प्रेजेंटेशन को अपने रिज्यूमे में लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने इस कंपनी के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को असेस कर लिया है,
एंड अब मुझसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, लेट्स अज्यूम कि ये कंपनी का पोर्टर क्या है, शॉर्ट क्या है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आई वुड बी हैंडल दिस क्वेश्चन, तो वो रख अपने रिज्यूमे हाईलाइट कर पाते हैं। अब इनफैक्ट आपके नेक्स्ट सेशन में रिज्यूमे की होने वाले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो भी शेड्यूल आएगा, so then you will realize कि जो स्टूडेंट्स ने नहीं डाला है और जिसने उन्होंने डाला है, that's where your competitive edge or the differentiation starts between one candidate vis-a-vis other candidate. Of course जो कैंडिडेट डाल रहा है वो ज्यादा मार्केट से ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, because this is exactly reality, correct? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप गूगल करो, रिसर्च रिपोर्ट्स खोल के देखो, फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स खोल के देखो, आप देखोगे 90% यही कंटेंट दिखेगा जो आपको मैंने स्लाइड्स में लिखवाया है, ठीक है? सो विच मीन्स व्हाट, आप एग्जैक्टली वो चीज कर रहे हो जो कॉर्पोरेट में प्रैक्टिकली यूज होती है। हमने उसका थ्योरी किया बट उससे काम नहीं होगा, करेक्ट? आपको वो एक कंपनी बिल्ड करके वो एक कॉन्फिडेंस आना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरा एक टारगेट है। इसलिए मैं आपको बार बार पुश कर रहा हूँ, फजलूर को इतनी डांट मार रहा हूँ जानबूझ के, करेक्ट? सो दैट ही रियलाइजेस व्हाट्स the wrong, what's the what is incorrect in his approach, correct? Or what's the thought process, what is the change that he need to bring in that thought process, ठीक है? क्यों? इसीलिए कि आप लोग को समझ आए कि किस तरफ जाना है। मेरे लिए बहुत आसान है, करेक्ट? मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मेरे को अभी एक बनी बनाई रिपोर्ट का टेम्पलेट है, वो आपको खोल के दिखा दूं, आपके एलएमएस पे भी, चलो मैंने बता भी दिया आपके एलएमएस पे भी, बट मैं चाहता हूँ आप नहीं देखें, बिकॉज अगर वो बना बनाया टेम्पलेट दे दिया, आप कुछ नहीं करोगे, आप उसमें जाके सिर्फ उसमें कॉपी पेस्ट का काम करके ले आओगे। विल दैट हेल्प? यस, मेरा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज मेरे को जो 15 मिनट में समझाना पड़ रहा है वो मेरा 2 मिनट में समझ हो जाएगा। बट विल दैट हेल्प यू टू गेट योर कॉन्फिडेंस फॉर यू टू क्लियर द इंटरव्यू? द आंसर इज नो, ठीक है? सो थोड़ा सा टारगेट मेरा सिर्फ मार्क्स का नहीं है, ऑफ कोर्स मार्क्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं आएंगे तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगा, सो that's also important, but that's not the only thing that I'm trying to target for all of my kids. I'm trying कि उसके बाद का जो एक नेक्स्ट टेस्ट होगा वो रिज्यूमे सिलेक्ट होना, और उसके बाद जो फाइनल टेस्ट है वो इंटरव्यू क्लियर करना, वो भी हो जाए, ठीक है? सो अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, आप अच्छा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बिलीव मी, in some shape and form it will come back to you, it will reward you. अब वो could be n number of ways, जैसे मैंने बताया, ठीक है? So मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि इसको थोड़ा सा लाइट, don't try and take it very casually. Spend some time consistently, daily or weekly. I leave that to you to structure your schedule and in view of the other commitments. But don't do that mistake कि लास्ट 2 दिन में या लास्ट 1 वीक में मैं कर लूंगा या कर लूंगी, फिर वो क्वालिटी में पता लग जाएगा कि आपने कैसा काम किया। बट हैविंग सेड दिस, अगर दीपक बहुत अच्छा आपने किया, and I believe more than happy to invest basis your recommendation or any of yours recommendation. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के बाद अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट इन्वेस्ट, ठीक है? Is there any pattern for scoring marks as you are talking? पैटर्न मैंने बताया नहीं था पारुल, आई थिंक पैटर्न मैंने बताया था, सो दोबारा बता देता हूँ। सो pattern would be, so I would be scoring on 3 parameters. One is your depth, your knowledge. आपको कितनी डेप्थ में नॉलेज है एक पॉइंट की या एक टॉपिक की, एक सब टॉपिक की। फॉर एग्जांपल we call it an artificial knowledge, or we call it a fundamental knowledge. So this is the 2 rules that I generally try and follow to assess or to select candidates. So artificial knowledge means आपको ऊपर से पता है, ठीक है? एग्जाम्पल, सॉरी फजलू, बट जैसे अभी इसने बोला ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, तो इसने कहीं पढ़ लिया और इसको लगा कि वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इसको पता है क्या होता है, ठीक है? सो वो एक आर्टिफिशियल ऊपर का लेयर है, ठीक है? जैसे उस लेयर को मैंने हटाया, अंदर कुछ नहीं था, ठीक है? Now somebody who is able to explain ये होता है, ये डिफरेंस होता है, ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, which means वो ऊपर की लेयर नहीं है, वो उसको फंडामेंटली डीप रूट से भी समझ चुका है। सो दैट वुड बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑन बेसिस व्हिच आई वुड मेक एन असेसमेंट कि आपको जो टॉपिक है, जो भी आप सब टॉपिक या जो भी पार्ट
आप प्रेजेंट कर रहे हो उसमें आपको कितना डेप्थ नॉलेज है. Do you know only surface, or you do know more than that, the surface, and you fundamentally know what this concept of what this is all about? That is first. Second, आप उसको information को use करके कैसे analyze कर रहे हो? आप सिर्फ read कर रहे हो या कुछ analyze करा है आपने? आपने सिर्फ copy paste काम किया है और delivery में सिर्फ read कर रहे हो, या actually आप उसका analysis बता रहे हो कि अच्छा ये graph है, या ये numbers है, या ये information है, तो इसका ये इम्प्लीकेशन है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो पार्ट पे. एंड लास्ट पार्ट, आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप उसका कितना कॉन्फिडेंट या कितना इफेक्टिवली आंसर कर पाते हैं. तो ये ब्रॉड 3 पैरामीटर्स पे मैं आपका ब्रॉड असेसमेंट, आपके 3 ही पैरामीटर्स होंगे जिस पे असेसमेंट होंगे. बाकी कितना अच्छा दिख रहा है प्रेजेंटेशन, कितने एनिमेशंस ऐड करें हैं, कितना ब्यूटिफिकेशन है, एज आई सेड अर्लियर दीज आर नॉट टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर मी टू गिव एनी असेसमेंट. तो ये ब्रॉड 3 पैरामीटर्स या पिलर्स होंगे अराउंड व्हिच यू वुड बी इवैल्यूएटेड फॉर दिस प्रेजेंटेशन. Just to ask one question, because you are in this industry, in this investment banking since years, decades. As an investor, what somebody should think when you are giving it them that how you can attract an investor? Trust. Because the trust. Believe me, because if we are giving it to you, the trust is not means, and this is the theoretical aspect. We want to make it a practical one to the extent possible. But when you are going to present to any investor, that's what your content should be, that I want to attract, so this should be the content of my what should be the core technical, because there, and when you are presenting to the investor, there are people who are core technical, who are core financials, and other aspects also. देखो, in all these years what I've understood, client puts money. Actually, I'm not asking about this on this presentation part. Not Understood. The real. Understood. Correct. Fair question. So that's so. So how does a client decide whether he would invest basis your recommendation or not? मोटा क्वेश्चन आपका वही आ रहा है. ठीक है. And as I said, it's a trust. और वो trust build कैसे होता है? It's the trust is not built कि मैं उसको promise कर दिया, मैंने उसको लिख के कुछ दे दिया, ऐसे trust नहीं build होता. ये दीपक, इतने बड़े investors होते हैं, these carry some $1 billion checks in their pocket, correct? So if we're able to explain those concepts to them, believe me, they secure their offices, give us these $1 billion checks in probably span of half an hour. Okay, so just try and understand the size of these segments that we deal with. Okay, so now the question is, how do we build that trust? The trust is created through the content that you deliver. Trust is created through that confidence that you bring on the table. The trust is built basis every question that you keep on answering. जब तक वो पूछते जाते, वो पूछना थक जाए, आप आंसर करना नहीं थको. That is, for me, that is the golden rule. अगर उसने 50 क्वेश्चन पूछे और आपने 50 के 50 वापस बैकफायर नहीं करे उसको, जैसे आई डोंट नो, अगर आपने देखा एक स्टेन गन मशीन जैसे होती है, वो फायर करती जाती, ऐसे होता है हमारे साथ. क्लाइंट छोड़ता नहीं है आपको, वो फायरिंग पर डालता है आपको. जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होती है, ठीक है, वो आपको बुलेट्स थ्रो करना शुरू करता है और आप वो हर एक बुलेट वापस फेंकते हो. ठीक है, जब तक आप फेंकते रहोगे, वो एक पॉइंट आता है, वो थक जाता है पूछना, आपने सारे क्वेश्चन उसके आंसर कर दिए. दैट्स वेयर द चेक कम्स आउट एंड से ओके निशांत ले इसको इन्वेस्ट कर. अगर वो क्वेश्चन जो पूछना शुरू करता है, आपने शेकी किया उसको,
या उन क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, या आंसर किया बट आपको खुद को पता है यार मैं बेवकूफ बना रहा हूँ उसको, या उसको समझ आ जाता है कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं, वो चेक नहीं देगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इम्प्रेस नहीं होगा। तुम कितनी भी एनिमेशन डाल लो, कितनी भी ब्यूटिफिकेशन कर लो, कुछ भी रिसर्च कर लो, अगर आप उसके हर एक क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाते टू हिज और हर सेटिस्फैक्शन, यू आर नॉट गोइंग टू विन दैट कॉन्वर्सेशन। that's the big triangle। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्लिप करो ना। मैं बहुत सिंपल प्रैक्टिकल टर्म्स में, आप मेरा सेशन अगर अटेंड कर रहे हो, आप मुझसे 20 क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मैं हर एक को 20 क्वेश्चन को आपको कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं करूँ, विल यू बी एबल टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन द ट्रेनर और मेंटर? दीपक, होगा क्या? कभी कभी नहीं होता है। That's why we have fought so hard for you. Get on board for us for the activity. नहीं, वो इंटेंट नहीं था क्वेश्चन पूछने का, बट थैंक्स फॉर दैट। And the second thing is that what I gathered from your explanation is the EIC and the value chain you are creating for the investor करेक्ट through EIC, because everything lies with economy, industry, and the company. करेक्ट And you have to stitch the value chain in that. करेक्ट एवरी पॉइंट ऑफ दिस एंटायर एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखोगे, इन 3 पैरामीटर में कहीं एक जगह फिट होगा, कभी कभी कोई पॉइंट एक से ज्यादा जगह भी फिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक कार की बात करी, अब इलेक्ट्रिक कार इंडिया में इंडस्ट्री में भी हिट कर जाएगा, और लेट्स अज्यूम फजलूर ने टाटा मोटर्स ली और टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार में है, ठीक है, तो वो कंपनी में भी फिट कर जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि वन पॉइंट और वन पैरामीटर, वन topic can hit into more than one of these parameters, be it an economy, be it an industry, or be it a company, or it could fall in any one also। तो either of the combination हो सकता है, but ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इन तीनों में से कहीं फिट ना करे। इन तीनों में कहीं ना कहीं वो फिट होगा। एंड अगर आप वो वैल्यू चेन इन्वेस्टर को समझा पाते हैं, उसको उसके वो क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं, तो उसको समझ आता है। अच्छा, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लाइंट को मुझे ये नहीं बोलना कि इन्वेस्ट कर। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपने जो एनालिसिस किया कि यार उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट मत कर, वो भी एक अच्छा एनालिसिस है कि आप क्लाइंट को बोल रहे हैं भाई इसमें इन्वेस्ट मत करना, ये अच्छी कंपनी नहीं है, या ये मैंने जितना भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गैदर किया इसके बेसिस पे इसमें प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट उससे भी ट्रस्ट ही बिल्ड हो रहा है ना, बिकॉज वो आपका रिकमेंडेशन तो फिर भी मान ही रहा है ना, चाहे आप बोलो हाँ चाहे बोलो ना। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती कर जाते हैं कि अगर यार मैंने अपनी कंपनी को सर को बताया कि यार ये कंपनी ठीक नहीं है, तो फिर मेरे मार्क्स ना कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका रिकमेंडेशन हाँ आता है कि ना आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रिकमेंडेशन आने का प्रोसेस, आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज करी है, कैसे एब्जॉर्ब करके उसको एनालाइज किया है, वो हाँ या ना आने तक मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा, समझने की। तो वो प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी रादर देन एन आउटकम टू दिस। और अगेन सॉरी, बट अगेन आई सेड दिस, अपॉलजी इन एडवांस, बट जब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा तो यू वुड बी इन अ काइंड ऑफ इन फायर, you will don't expect sympathy from me on those, so I will put you on a difficult questions, of course nothing personal, but more from a analysis perspective। तो मैंने पहले से बोला, do not expect कि मैं आपको बहुत easy things रखूं, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, आपको प्रेजेंटेशन दे, आपको कोशिश करी जाएगी कि आपको थोड़ा सा रियलिटी का सेंस दिखाने की। तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल एज द कंटेंट पर्सपेक्टिव से कि आपको एक फायरिंग लाइन पर डाला जाएगा। ठीक है। सो दीपक, डज दिस आंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि प्रैक्टिकली कैसे क्लाइंट डिसीजन लेता है या किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं? इज दैट पार्ट आंसर्ड or not? Just want to get a sense from you on that. No, it's answered. Just to come up for what you were discussing on tracking system, I think this is not a USP for Tata Motors. It is an IoT, which is now it's a common USP for all automobile industry. So again, मैं सब बताना नहीं चाह रहा था फजलूर को, ठीक है। So you're right,
टाटा मोटर्स को फोर्सफुली ये करना पड़ रहा है, बिकॉज जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है, सो किया इज द वन हु ब्रॉट दिस इन इंडिया, ठीक है। मारुति भी बहुत पीछे है, टाटा मोटर्स भी बहुत पीछे है, हुंडई, prior to Kia, it was Nissan. निसान इंडिया में Bring- निसान इंडिया में तो कभी सक्सेस नहीं हुआ ना, सो No, किया because they की have जो brought it in Kicks, this IoT, through which they are tracking various parameters. हाँ, बट वो सक्सेस नहीं हुआ ना। तो जब तक कोई प्रोडक्ट आपने उस प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी डाल दी, वो प्रोडक्ट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो नीड नहीं, वो डिमांड नहीं बनती कस्टमर्स। अब क्या हो गया है, क्योंकि ऐसे कुछ मॉडल्स में वो डाला गया है जो हाई सक्सेस हो गए इंडियन मार्केट्स में। अब क्या है, कस्टमर आकर डिमांड कर रहा है। सो लेट्स थिंक दिस वे कि अब मुझे वो टेक्नोलॉजी पता लग गई, बिकॉज अब जो रोड्स पे जो मॉडल्स चल रहे हैं उसमें से काफी सारे मॉडल्स में है। तो जब मारुति की कार में खरीदने जाऊंगा, मारुति को मैं डिमांड करता हूँ तुम्हारे पास ये है क्या, वो कहता है नहीं मुझे नहीं खरीदनी। टाटा मोटर्स के पास जाता हूँ, तुम्हारे पास है क्या, मैं कहता हूँ मुझे नहीं खरीदनी। तो ये फोर्सफुली अब टाटा मोटर्स और मारुति को ये लाना पड़ रहा है, बिकॉज दे वर नॉट तो नहीं बोलूंगा, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इंडिया में ये चीज इतनी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ जो टाटा मोटर्स को करना पड़ रहा है, जो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, ये काफी पीछे हैं। बाकी कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इंडिया में ला चुके हैं। उनके कुछ कॉम्पिटिटर्स ने तो उस वजह से काफी सक्सेस भी अचीव कर लिया है। सो किया इज वन ऑफ दोस, ठीक है। अब उस कंपटीशन को मैच करने के लिए, बिकॉज अगर एक कॉम्पिटिटर एक सेगमेंट में एक चीज लॉन्च कर चुका है और कस्टमर्स वो चाहते हैं, तो आपको आपको अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, दैट्स राइट वर्ड, you need to bring that, correct? Otherwise आप वो मार्केट शेयर लूज कर जाओगे। टाटा मोटर्स इज अगेन वेरी वीक इनटू दोस सेगमेंट्स। तो you're right, it's not a strength for them or it's a threat for them। अगर वो टेक्नोलॉजी सही से नहीं ला पाए तो वो लूज कर जाएंगे जो अदर प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज में खेल रहे हैं। ठीक है फजल, तो आपको रेडीमेड एनालिसिस मिल गया, बट इसके मैं एक पॉइंट काटूंगा जब तुम प्रेजेंटेशन दोगे, टेंशन मत लो। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? प्रेजेंटेशन पे मैं आज खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स द एजेंडा दैट आई वांट टू वाइंड अप टुडे। सो प्लीज, बीट अ पावर पॉइंट क्रिएशन, बीट अ डिलीवरी, कुछ भी है तो प्लीज 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 ensure you use this opportunity to ask those doubts। एंड आई एम ओके, जैसे दीपक ने पूछा, तो अगर आप कुछ प्रैक्टिकल साइड से समझना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो वो पार्ट्स भी, अगर कोई डाउट है which I have not covered so far and you believe important है, या आपने कभी पर्सनली प्रेजेंटेशन दिया हो, आपको कुछ चैलेंजेस आए हो, तो भी आप पूछ सकते हैं। That's also okay। हेलो, सॉरी फजल, go ahead। हेलो। Go ahead फजल। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा फिर, तो फिर मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन? वही सर कि कंपनी में क्यों नहीं डाला गया, कंपनी वेबसाइट पर। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फजल? मेरे पास कोई जिनी बैठा है क्या, जिस जिनी को मैं बाहर बुला के पूछूं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ रखा है? नहीं सर, मैं ये सर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा क्या? कि कुछ ऐसा की इंस्ट्रक्ट बता दो कि मैं उस पर जा करके ये और खोजूं। वो शॉर्टकट हो जाए मेरे लिए, करेक्ट? यही चाहते हो ना तुम? नहीं, यही तो चाह रहे हो? शॉर्टकट तो नहीं कर सकता शॉर्टकट ही मांग कि रहे हो? हाँ, लेकिन हाँ मेरे को वो लिंक या वो वेबसाइट बता दो जहाँ से मिल जाएगा। यही तो चाह रहे हो आप, कि मुझे और कोई ढूंढना ना पड़े? शॉर्टकट नहीं है, इससे थोड़ा टाइम भी बच सकता है। शॉर्टकट ही हुआ ना ये।
जो टाइम मैं उस पर ज्यादा वेस्ट करूंगा उतना टाइम मैं फिर दूसरा चीज में रिसर्च करने में ये करूंगा। मैं ये शॉर्टकट ही सोच रहा हुआ हूँ। ना, शॉर्टकट ही हुआ ना, शॉर्टकट ही हुआ ना फिर, इसको शॉर्टकट नहीं बोलते। शॉर्टकट है कह सकते हैं, बट उस टाइम को फिर हमें दूसरे टाइम में भी तो वेस्ट कर रहा हूँ ना सर, दूसरे टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहां पे भी आप यही बोलोगे सर उस इसका टाइम बता को दो मैं कहीं और बचा दूसरे। लूं। फजलू देखो, आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम आप समझो इस बात को, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव ये सिर्फ मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी मिल रही है उससे डाल दो, हो जाएगा काम। आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, बट ठीक है, इट्स ओके। आपको प्रॉब्लम, अच्छा मैंने आपको बता दिया फजूल यहाँ से डाल दो, आपने डाल दी, इंटरव्यू में क्या करोगे? आपको लगता है इंटरव्यू में आपसे हो जाएगा वो हैंडल? फजलू नहीं सर, मैं ये तो ये अभी ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं, हाँ, अभी बना ये लो, बाद में प्रेजेंटेशन तक दोबारा तो बना मैं लो। कुछ तो पेपर कर पा। अबे पूरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी फजलू, एमबी भी ऐसे निकाल लिया, ग्रेजुएशन भी ऐसे निकाल लिया, सब कुछ ऐसे निकालोगे क्या कि अभी पढ़ लेता हूँ, अभी कोई शॉर्टकट मार लेता हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, बात कभी नहीं आएगी फजलू, कभी नहीं आएगी। बट ठीक है, सॉरी, बट आई थिंक इट्स ओके, माय माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे यू थिंक, बट सॉरी, आई कांट गिव यू शॉर्टकट, I can't give you the shortcuts. At least I have never trained myself, nor I would prefer my kids to be trained on those parameters. I always believe अगर आप एक सही तरीके से जाते हैं वो आपको रिवॉर्ड करता है। उसी लॉजिक से यार एग्जाम में मैं चीटिंग करके पास हो गया, मार्क्स निकाल लिए, वो ऐसे कुछ है ना ये भी, तो मैं सॉरी आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता, ठीक है। बट ठीक है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हारे को चाहिए तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, बट यू आर डैमेजिंग योरसेल्फ, you're damaging your career, you're damaging your CTC value that you can draw from the market, but ठीक है, I think that's the way every individual has a choice to decide what they want. So इसका आंसर सुनो, ये है, ठीक है, आंसर ये है, टाटा मोटर्स ने जानबूझ के इस चीज को अब टाटा मोटर से दूर रखा हुआ है फ्रॉम ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो भी नाम आपने लिए थे उस पे कहीं भी टाटा मोटर्स अपने को एसोसिएट नहीं करता है, बिकॉज ये सब एक लग्जरी सेगमेंट के ब्रांड्स हैं। जैसे टाटा मोटर्स इससे लिंक होना शुरू हो जाएगा, अपने वेबसाइट पे ले आएगा, ठीक है, ये सब लग्जरी सेगमेंट का इम्पैक्ट जो ब्रांडिंग है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन टाटा मोटर्स कीप ऑल दीज थिंग्स अवे फ्रॉम देयर ब्रांड कॉल टाटा, ठीक है, सो दैट जो जैसे आज टाटा टाटा की कोई कार है, मेरे को टाटा की कार से कोई लग्जरी फील नहीं आता है, उसी को ब्रांडिंग, कोई लग्जरी ब्रांडिंग कार नहीं है। वीजा विज लेट्स अज्यूम जैगुआर है, ठीक है, वीजा विज लैंड रोवर है, नाउ दीज आर लग्जरी ब्रांड्स, करेक्ट। अगर इनको टाटा मोटर्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट कर दिया जाएगा तो इनकी जो लग्जरी फील है, जो प्रीमियमनेस है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम ए पोजिशनिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम ए द वे दे दी customers perception about the brand, that's the right word, ठीक है। सो ब्रांड परसेप्शन एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो डैमेज हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली सेम चीज है जो मारुति ने किया है बाय लॉन्चिंग अ नेक्सा, ठीक है। तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का, बट ऑनेस्टली मैं बहुत खुशी खुशी आंसर नहीं दिया, बिकॉज ये आंसर डैमेजिंग है आपके लिए, बट ठीक है, शायद आपको वही समझ आता है तो इसलिए मैंने आंसर भी दे दिया आपको, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन डाउट? This question was for Three. inclusion of Jaguar, Tata Motors. What? हाँ, सॉरी, आपका मैसेज देख रहा हूँ दीपक, मुझे आपने भेजा है। Actually, that is relevant. हाँ बट ठीक है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े लग्जरी गाड़ी है। सॉरी,
हाँ फजलू। हेलो सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सन जो है वो थोड़े लग्जरियस है, हम्म तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो को भी तो नहीं ना डाल रखा है अभी अपने अबे कंपनी नहीं वेबसाइट डाल। पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सॉन कब लॉन्च करी है? कब लॉन्च करी है इंडिया में, पता है? डेट पता है आपको? 2020 20 2020। 2020। हाँ 2020 तो 12 महीने हो गए ना, कौन से महीने में लॉन्च करी है? बताओ। हेलो हाँ फजलू, 2020 के कौन से मंथ में लॉन्च करी है यस, इंडिया में? यस नहीं, क्वेश्चन बता, आंसर बता। मंथ का तो पता नहीं सर। ओके। अब आप कौन सी एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो, ये अब बताओ मुझे। जब आप उससे पहले की एनुअल रिपोर्ट देख, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है जिस 2019 to 20। तो उसमें कैसे आएगी यस मुझे सर, बताओ। 2019 to 20। कैसे आएगा उसमें? ओह यस सर, यस। बट सर इसके एनुअल रिपोर्ट में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो दे रखा है पूरा, वो भी दे चार इलेक्ट्रिक व्हीकल फजलू वो इसलिए दे एनुअल रखा रिपोर्ट है में। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने से पहले ही 2019 और 20 में उनका प्लानिंग हो गया था, बट जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो उस एनुअल रिपोर्ट के रिलीज के बाद लॉन्च किया। क्या दूसरी सर? बात, इलेक्ट्रिक कार कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। फजलू म्यूट पे जाओ, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कि बहुत सारी कंपनीज इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताएगी आसानी से, क्योंकि उनको डर ये है कि उनका जो कॉम्पिटिटर है उस इंफॉर्मेशन को लेके वो एडवांटेज में ना चला जाए। तो टाटा मोटर्स बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स में कुछ भी शेयर करने में, कुछ भी टेक्नोलॉजी शेयर करने में, सो दैट वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रहे। बिकॉज टाटा मोटर्स इज अगेन वन ऑफ दोज ब्रांड्स और कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स में काफी आगे आ गया है। मारुति ने कुछ नहीं लॉन्च किया है अभी तक, करेक्ट? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर मारुति लॉन्च नहीं कर पाया है, टाटा ने कर दिया है, कर नहीं दिया है, वो बेच भी रहा है और उसके रोड्स पे नेक्सॉन चलनी भी शुरू हो गई, करेक्ट? सो विच मीन्स वो एडवांटेज क्रिएट कर लिया ना। तो मारुति अब वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक उनका 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में रोड टेस्ट है उस टेक्नोलॉजी का। फर्स्ट क्वार्टर है या सेकंड, ऐसी कुछ फर्स्ट क्वार्टर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, is the quarter that will be testing their electric car technology on the Indian roads. ठीक है? But they have already launched the WagonR. हाँ, बट वो जो लॉन्च हुआ है वैगनर, that's what I'm reading is not pretty satisfactory to their standards. It's वैगनर दीपक, it's not a car जो प्राइवेट कार सेगमेंट में ऑपरेट होती है, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक कार का टेक्नोलॉजी है ना, वो डिफरेंटली रन होगा। आई डोंट नो कितना आपने, बट समझो इस बात को। एक टैक्सी जो ओला उबर चलाते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिक कार से एक्सपेक्टेशन एक्स है, बट मैं अगर प्राइवेटली अपने घर के लिए खरीद रहा हूँ, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक कार से अलग एक्सपेक्टेशन। तो जो भी इन्होंने लॉन्च किया है, it's to meet this. Nexon is not for the commercial vehicle. Nexon has been launched to satisfy the electric car requirement or expectation of the private car buyers, not the commercial car buyers. तो वो चीज मारुति आई थिंक फेज में लॉन्च कर रहा है। तो पहले उन्होंने ये करा है, अभी दे विल ट्राई एंड सी ओके इसका क्या है, एंड इसलिए उसने इतना टाइम गैप रखा कि इससे जो फीडबैक उनको मिल सके या इससे जो भी उनको मिल सके, एंड उसका टेस्टिंग करके फिर वो कमर्शियल प्राइवेट सेगमेंट में, विच मींस दे विल ट्राई एंड ब्रिंग देयर कार्स जो ज्यादा एग्रेसिवली खरीदी जाती है बाय अ प्राइवेट बायर्स, नॉट फॉर अ कमर्शियल और अ टैक्सी पर्पस। दैट्स माय रीडिंग सो फार, जितने मैं मारुति के बारे में अभी तक पढ़ रहा हूँ, स्पेशली ऑन द इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट। You are correct, but at the same time, any of these automobile company cannot do standalone by themselves, because the infrastructure is not geared up for that, because the maximum they can give is 330 kilometers for a one charge.
वो भी चैलेंज है ना, वो भी चैलेंज है। इसलिए तो टाटा मोटर्स ने डेलिबरेटली ये कमर्शियल सेगमेंट के लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम कमर्शियल के लिए प्रॉब्लम यार। एक जो उबर ओला की टैक्सी वो तो पूरे दिन चलती रहती है, उसके लिए ये जो वन चार्ज में कितने किलोमीटर से, ये बहुत 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 कम है। बट एक प्राइवेट, जैसे अगर आप और मैं चलाए तो हमारा डेली कंजम्पशन क्या होता होगा, अगर लॉकडाउन नहीं था जब, तो मैं यहाँ से ऑफिस से, सॉरी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, और वीकेंड्स पे कुछ ड्राइव, मोर और लेस यही पैटर्न होता है, करेक्ट, इन नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, करेक्ट, ठीक है। तो वो जनरली एक वीक में मैं कितना बार मुझे चार्जिंग करने की जरूरत है, वो एक मैटर करता है जो ये लोग वर्क कर रहे हैं। दूसरा, एक एक टैक्सी ड्राइवर 2 घंटे खड़ा हो जाएगा उसको चार्ज कराने के लिए, बट एक प्राइवेट, अगर आप और मैं को बोले ना कि 2 घंटे अपने एक ऑफिस शेड्यूल से निकाल के गाड़ी को चार्ज करने के लिए खड़े हो जाओ, आई विल से भाई मुझे नहीं चलानी गाड़ी, मेरे को तो पेट्रोल ही चला लूंगा, ठीक है। फॉर मी द 2 hours इज वेस्ट इफ आई हैव टू स्टैंड एंड फॉर चार्जिंग माय कार। सो ये डिफरेंस है vis-a-vis मारुति एंड टाटा, जो माइंडसेट चल रहा है। मारुति इज थिंकिंग कि हाँ मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकता हूँ जो एक कमर्शियल के लिए चल जाएगी। उसने प्राइवेट वाली को अभी आई थिंक इतना प्रायोरिटी नहीं करा, या शायद इससे वो कुछ सीखेगा और फिर बाद में आएगा। जो टाटा मोटर्स है वो उल्टा खेल रहा है, वो उसका ऐसा मानना है कि ये जो उसने टेक्नोलॉजी बना ली है नेक्सॉन में, वो एक प्राइवेट बायर्स को सेटिस्फाई कर जाएगी और फिर कमर्शियल में बाद में आएगा। आई डोंट नो विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज स्टिल it's too early to comment on that, but that's the strategy or the mindset that these two big players, at least in auto sector, जो एक दूसरे से compete करने की कोशिश कर रहे हैं into that space. ठीक है, और ऑफ कोर्स वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तो सबके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वो तो गवर्नमेंट को या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको क्रिएट करने हैं, टाटा मोटर्स या मारुति जाके क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सेम प्रॉब्लम है जब इंडिया में सीएनजी आना शुरू हुआ था, तो पहले सीएनजी के लिए लिमिटेड स्टेशंस, फ्यूल स्टेशंस थे, बहुत लंबी लंबी क्यूज, लाइंस लगती थी, बहुत घंटों तक आपको वेट करना पड़ता था to get your gas for the car. So of course वो same problem transition अभी जाएगा, and that's why there is lot of question mark whether I should or should not purchase electric car or not. So वो सब चीजें हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है last time on this presentation before we finally close this part? Last time, any doubt on the presentation? We'll not take this again now. चलिए ठीक है। So in case no, couple of things from my side. One, बहुत highly likely है कि आपको शायद next to next, I'm not sure on the schedule, वो आपको जो भी formal schedule आएगा, आपके resume के sessions होने वाले हैं lined up. So what I want from you, जब भी वो schedule हो, आपको email में लिखा हुआ होगा resume का session है या resume building है, ऐसा कोई word होगा, but resume sense मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको अपना अपडेटेड resume लेके आना है उस सेशन में। सो इंश्योर दैट इन योर लैपटॉप और ये मशीन जिससे भी आप डायल इन कर रहे हैं, प्लीज कोशिश करना वो सेशन में लैपटॉप से डायल इन करने का, नॉट थ्रू फोन, बट आई लीव दैट टू यू नाउ। बट यू हैव दैट अपडेटेड कॉपी ऑफ रिज्यूमे इन लैपटॉप, बिकॉज मैं आपको एक्सेस दूंगा, वो मुझे रिज्यूमे आप दिखाओगे तभी मैं उसमें कुछ फीडबैक आपको दे पाऊंगा, ठीक है। पहले से डाउनलोडेड होना चाहिए, ये नहीं कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ईमेल से, ये वो सब प्लीज टाइम मत वेस्ट करना। Before you start the class, ensure that you save the copy of your resume on your local drive or your desktop, so that you do not face too much of challenge in showing and discussing that with me. That is point number one. Point number two, अपने resume में हर एक point के सामने, ठीक है,
हर एक पॉइंट के सामने, हर एक सब पॉइंट के सामने आप 3 कैटेगराइजेशन करेंगे, और वो कैटेगराइजेशन क्या होगी? एक पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और एन मीन्स न्यूट्रल. So I repeat, for every part of your resume, subpart, bullet point, every information of your resume, you have to classify into 3 categories. और उसके सामने आप देखोगे पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन, फॉर एग्जांपल आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आपने आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल के लिए काम किया. Now you need to say, you need to tell, you need to assess that is this line going to create a positive impact on an interviewer or a panel, or a negative impact or a neutral impact. Positive means it will create a good impact, negative means it will create a negative impact, and neutral means positive भी नहीं है, negative भी नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो neutral है. समझ आया? Last time, any doubt on this positive, negative, neutral? ठीक है. सो इन केस नो, सो ये 2 चीज आपको करना है. फर्स्ट, अपडेट योर रिज्यूमे टू द एक्सटेंट व्हाटएवर यू कैन. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आपका फाइनल रिज्यूमे लेके आओगे, बट आपके हिसाब से जो भी है वो करो. फिर उसके बाद मैं उसमें काफी सारे चेंजेस या फीडबैक डिस्कशन आपके साथ होंगे, तो फिर और देखेंगे क्या उसमें और बिल्ड करना है या इम्प्रोवाइज करना है. ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट दैट यू नीड टू ब्रिंग इन. एंड सेकंड इज put a categorization of plus, minus and negative or neutral sign. ठीक है. तो ये प्लीज अगर नेक्स्ट वीकेंड होता है तो नेक्स्ट वीकेंड, उसके बाद होता है जो भी सेशन आपका होगा रेज्यूमे का, उसके लिए आपको रेडी करके लाना है. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज फॉर द डे? या सुभाष? आई डोंट थिंक सो, बट दामनी से मैं कहता हूँ आपको बता देगी. शी विल इन्फॉर्म यू. अगर आपको ट्यूसडे इवनिंग तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, सो इट मींस नो. क्योंकि पिछले वीक भी सेम ऐसे ही हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था. अब मैं लॉगिन करके बैठा हुआ. मुझे तो दामनी ने बोला इन्फॉर्मेशन भेजा है उसने. ठीक है. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था. ओके, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ. अगर ट्यूसडे इवनिंग तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो नहीं होगी. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? This presentation, what you're saying that we can share it with your mail. Presentation या resume? Presentation. नहीं, आपको प्रेजेंटेशन करना होगा. You will be making just a draft presentation I'm talking about. If you want to say submit it to you. So आपका जब बन जाए तो मुझे बताना, फिर then I will have a look at it. Okay. तो मैं क्लास में आपको टाइम दे दूंगा, आप मुझे वहां दिखा देना. ईमेल पे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो फीडबैक देना कैसे दूंगा? वो तो फिर ईमेल चलता रहेगा, उसमें कुछ खास एडवांटेज आपको होगा नहीं. ठीक है. सो आप बना लो. वंस यू आर डन देन लेट मी नो, या जैसे जैसे आपको दिखाना हो वैसे उतना अगर हाफ फेजेस में दिखाना है फेजेस में दिखा सकते हो. दैट आई लीव इट टू यू. और उसके बाद जो फिर फीडबैक लेना है वो मैं दिखा सकता हूँ. अभी अगर आपका है तो अभी आप दिखा सकते हो नेक्स्ट सेशन में. सो दैट्स ओके. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ठीक है. इन केस नो, थैंक्स. विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. चलिए, बाय, टेक केयर.